गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? टुडे वी आर स्टार्टिंग द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यूजीसी नेट इन मैनेजमेंट कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक फॉर प्रेजेंटेशन इज डेरिवेटिव्स। तो आज हम लोग बात करेंगे डेरिवेटिव्स की। आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव्स, व्हाट इज ऑल अबाउट द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर ऑप्शन स्वैपिंग्स. So please do join everyone so we can start at today's class, which is very important for UGC NET in management, commerce and economics, all three streams. Please do join everyone so we can start at today's class. Please join everyone. Please join everyone so we can start at today's class. That is all about the derivatives. Please join everyone. Today's topic for presentation is derivatives. Please join everyone. Please join everyone. Yes, Seema, good evening. Shikha, good evening. Sunita, Priyanka, yes. So we are starting the class within the 1 minute. So other student also may join. Please do join everyone. Today's topic for presentation is derivatives. I hope everybody has joined. So yes, all those candidates who are joining the very first time, my name is Anuvo Singh. Since last 11 years, I'm taking the classes for UGC NET in Management, Commerce, Economics. And I used to work with India's top teaching and research organizations, LPU, MIT University, Sarda, IFM, TR, UP government, IIM Lucknow. And I've qualified more than 5 times NET and GRF in Management, Commerce, and Economics. And used to publish more than 20 research papers in top quality index journals like Scopus, TR, UGC Care, UGC Listed. MBA International Business, MCOM International Business, MA Economics, and PhD Applied Economics. So today's topic for presentation that is all about derivatives. जहां पर भी किसी को कोई डाउट लगे तो प्लीज पूछ लीजिएगा. बट टुडे अगेन इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक और इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए. आज हम लोग बात करेंगे डेरिवेटिव्स की. जैसे कि नॉर्मली पता है कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, कि डेरिवेटिव इज ए फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट ड्राइव इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स. ए डेरिवेटिव derivatives is a financial contract that derives its that derives its value derives its value from an underlying assets. And what are the underlying assets if we are talking about? ठीक है. So derivatives is a financial instrument. It's just like a financial instrument है between the buyers and sellers. So derivative is a financial contract that derives its value from underlying assets. होता क्या है इसमें कि अगर वही बात करेंगे जो आपकी जो एसेट्स इंक्लूड, इसमें कौन कौन सी एसेट्स इंक्लूड करते हैं हम लोग. द एसेट्स, तो अंडरलाइंग एसेट्स की बात करते हैं. अंडरलाइंग एसेट्स इंक्लूड्स कमोडिटीज, stocks, bonds, interest rate, and currencies. So what are the underlying assets we are talking about? This is all about the commodities we are talking about: stocks, bonds, interest rate, and currencies. होता क्या है डेरिवेटिव्स, फर्दर वी विल टॉक अबाउट.
Derivative is a financial instrument which is deriving the value from underlying assets. इसमें होता है कि the buyers agrees to purchase the assets. Buyers agrees to purchase the assets on a date. ठीक है, मतलब ऑन ए भाई स्पेसिफिक डेट की बात करेंगे, डेट भी पहले से होगी फिक्स, ऑन ए स्पेसिफिक डेट एट स्पेसिफिक प्राइस. ठीक है, मतलब होती कि नॉर्मली क्या है, हम लोग ये डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं स्पेकुलेट करने के लिए. क्या के लिए? स्पेकुलेट करने के लिए. समटाइम्स देखिए, ये कहीं ना कहीं हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस में डील करते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि योर करेंसी विल गेट अप्रिशिएटेड, एंड इन टर्म्स ऑफ द इंडियन यूएससी विल टॉक अबाउट Indian traders are accepting that Indian currencies will get appreciated in a nearby future. In the same time, US traders are expecting their currencies will get appreciated in the same time. So that is the only reason. Just because of speculating the risk, what actually we do the certain trades. Sometimes we do the forward contract of our future contract or options or swappings. So buyers agrees to purchase the asset on a date at a specific price and a specific date at a specific price. Derivatives can be, हम लोग क्यों यूज करते हैं derivatives? Derivatives can be used either for risk management, हम लोग risk को reduce करने के लिए. Derivatives can be used for either for risk management or speculation. ठीक है, तो डेरिवेटिव्स कैन बी यूज फॉर ईदर फॉर रिस्क मैनेजमेंट और फॉर स्पेकुलेशंस. या तो हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के लिए डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं या स्पेकुलेशन के लिए यूज करते हैं. सो व्हाट इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव हैव बीन टोल्ड यू. द डेरिवेटिव्स इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट ड्राइव इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स, एंड अदर साइड आई हैव बीन टोल्ड यू द एसेट्स, ऑल दोस एसेट्स व्हिच इंक्लूड्स commodities, stock, bonds, interest rate, and currencies. And further, I have been told you the buyers agrees to purchase the asset on a specific date at a specific price. What are the reasons behind to make certain derivative contract? Derivatives can be used either for risk management and for the speculation. Without anybody is having any doubt, please do tell me. आगे बात करेंगे प्रोडक्ट इन डेरिवेटिव्स. प्रोडक्ट और इसको हम लोग बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेरिवेटिव्स. प्रोडक्ट्स और इंस्ट्रूमेंट इन डेरिवेटिव्स. प्रोडक्ट और इंस्ट्रूमेंट इन डेरिवेटिव्स. कोई डाउट तो बताइए. अभी बेसिक में समझ में आ गया डेरिवेटिव्स क्या होता है. कोई अभी तक कोई डाउट तो बेसिक में कोई डाउट तो बताइए पहले. कोई डाउट तो प्लीज बताइए. प्रोडक्ट इन डेरिवेटिव्स. So what are the product or instrument in a derivatives? So we have a basic 4 product or instrument of derivative. First is forward, other is future, third is options, and fourth is swaps. ठीक है, कोई डाउट. पहले हम लोग बात करेंगे फॉरवर्ड. व्हाट इज ऑल अबाउट द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं?
तो इसमें क्या होता है कि इट इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट, इट इज a contractual agreement between the two parties to buy or sell an underlying asset at a certain future date for a particular price that is pre-decided on the date of contract. मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, ये दो पार्टियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप होती है, डेट फ्यूचर की होगी बट प्राइस आपने आज ही फिक्स कर लिया है। हम लिख दे रहे हैं कि इट इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट। क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट। इट इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज, बिटवीन द टू पार्टीज टू बाय और सेल। अब बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। टू बाय और सेल एंड अंडरलाइंग एसेट्स, एंड अंडरलाइंग एसेट्स, underlying asset at a certain future date, डेट पहले से ही फिक्स होगी, certain future date for a particular, for a particular price, for a particular price that is predetermined, that is predetermined on the date of contract. हम लोग पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट की डेट फिक्स कर लेते हैं एंड वी हैव टू बी फिक्स द प्राइसेस ऑफ सर्टेन कमोडिटीज, वट एवर द कमोडिटीज वी आर डीलिंग विद। So it is a contractual agreement between the two parties to buy or sell an underlying asset at a certain future date for a particular price that is predetermined on the date of contract. That is called forward contract. क्लियर? अगर बात करेंगे लिमिटेशंस क्या होती है इसकी, मतलब डेट पहले से फिक्स कर ली आपने कि फ्यूचर की डेट होगी, मान लीजिए आज है 6 दिसंबर, आफ्टर 90 दिन बाद मान लीजिए फरवरी, 5 फरवरी को आप कॉन्ट्रैक्ट कर दें, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट कर देंगे। वट एवर द डेट पहले से फिक्स हो, प्राइस भी आपने फिक्स कर दिया। इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं? इसकी लिमिटेशंस होती है, पहला होता है लिक्विडिटी रिस्क। मार्केट में लिक्विडिटी रिस्क के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि पेमेंट इन फ्यूचर में आएगा तो अभी लिक्विडिटी हो सकती, लिक्विडिटी की दिक्कत हो जाएगी, इन फ्यूचर में लिक्विडिटी ज्यादा हो सकती है। अदर दिक्कत है काउंटर पार्टी रिस्क। व्हाट इज ऑल अबाउट द काउंटर पार्टी रिस्क? व्हाट इज ऑल अबाउट द काउंटर पार्टी रिस्क? मतलब मींस बोथ द पार्टी हैड देयर ओन रिस्क। बोथ द पार्टी मतलब कोई भी पार्टी क्या कर सकती है कि मना कर सकती है कि एट द एंड ऑफ द डे आई एम नॉट गोइंग टू मेक द पेमेंट, या दूसरा बोल रहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू सेल सर्टेन कमोडिटीज। तो काउंटर पार्टी रिस्क इज ऑल अबाउट द बोथ द पार्टीज हैविंग सर्टेन रिस्क। तो इसलिए दोनों पार्टी को रिस्क होता है, बायर भी मना कर सकता है और सेलर भी मना कर सकता है। इसके अलावा सेटलमेंट की कोई गारंटी नहीं होती, बिकॉज वी डोंट हैव एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी। For the foreign exchange, we have a Central Bank of the India. Central Bank of the India. Who is the Central Bank of the India? That is called Reserve Bank of India. So in terms of foreign exchange market, we have a RBI, but in terms of derivatives, we don't have, especially in a forward contract, we don't have any regulatory authority which could manage the entire derivative contract. That is all about we do call no settlement गारंटी। सेटलमेंट की कोई गारंटी नहीं है, और नो रेगुलेशंस, कोई भी रेगुलेशंस नहीं है, नो रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, बिकॉज नो रेगुलेटेड अथॉरिटी, नो रेगुलेशंस बाय सरकार का कोई भी इसमें इंटरवेंशन नहीं, नो रेगुलेशंस बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी। हम लोग we do believe on only those things where the somehow there is a certain government interventions on all those items and all those goods and services where there is no government interventions. We don't believe on those goods and services. That is the only thing. इसमें लिक्विडिटी रिस्क की बहुत बड़ा दिक्कत है, काउंटर पार्टी रिस्क का दिक्कत है, सेटलमेंट की गारंटी कोई नहीं है, और नो रेगुलेशंस, बिकॉज नो रेगुलेशंस बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटीज और एजेंसीज। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कोई डाउट तो बताइए। अगला है
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कोई डाउट बताइए। विशाखा मैम, आप, सीमा, शिखा, सुनीता, सौम्या, यू, प्लीज डू एवरीवन टेल एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़े। प्लीज डू टेल मी एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, डू टेल मी, किसी को कोई डाउट है बताइए। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? अब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर की। फॉरवर्ड दोबारा बता रहे हैं कि इट इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज to buy or sell an underlying assets at a certain future date for a particular price that is predetermined on the date of contract. What are the limitations? Liquidity risk, counterparty risk, no settlement guarantee, and no regulations by any government authority. अब आगे बात करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज ऑल अबाउट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? सेम है, बस इसमें क्या है, डेट भी फ्यूचर की होगी और रेट भी फ्यूचर का होगा। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट between two parties to buy or sell buy or sell asset at a certain time भी फिक्स कर लेंगे पहले, at a certain time in the future at a certain प्राइस भी फ्यूचर का होगा और डेट भी फ्यूचर की होगी। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग दोनों लोगों को लगता है कि बोथ द पार्टीज ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर गेन्स and both the parties are expecting their currencies will get appreciated in a nearby future. That is the only reasons we do call as a future contract, or that is the only reasons we make the agreement in the terms of future contract. So future contract is an agreement between the two parties to buy or sell asset at a certain time in the future at a certain price. तो डेट भी हमारी फ्यूचर की होगी, प्राइस भी फ्यूचर का ही होगा। मान लीजिए आपने बोल दिया 6 दिसंबर है कि 5 फरवरी को जो भी प्राइस होगा उसी प्राइस पे हम आपको पेमेंट करेंगे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जस्ट लाइक होता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू हैज अगेंस्ट रिस्क और speculate on the price. Future contract to hedge against the risk or speculate on the price movement of the underlying assets. हम लोग कह रहे हैं कि रिस्क को हैज करते हैं। हैजिंग क्या होता है? हैजिंग इज अ टेक्निक टू कवर द रिस्क।
The future contract to hedge against the risk or speculate on the price movement of underlying assets. Underlying assets. ठीक है, और ये याद रखिएगा फ्यूचर जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं किसी भी एक्सचेंज में या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होती इसमें होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आर स्टैंडाइज कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन ए सेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में इसको ट्रेड किया जाता है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एक सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में इसको वी डू ट्रेड। एक्चुअली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जस्ट लाइक बेटिंग होता है। द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कंसिडर्ड a sort of betting। शर्त नहीं होता कि जस्ट लाइक गैम्बलिंग हो गया बिटवीन द टू पार्टीज होते ही दोनों पार्टी के बीच में बेटिंग ही हो गया ना। मतलब बोथ द पार्टीज इज एक्सपेक्टिंग देयर करेंसीज विल अप्रिशिएट। तो पूरा एक रिस्क हो गया होता है कि मतलब पैसा लगाना वाला सट्टा हो गया क्योंकि बिकॉज बोथ द पार्टीज ट्राई टू मैक्सिमाइजिंग देयर गेन एंड बोथ द पार्टीज आर एक्सपेक्टिंग कि देयर करेंसीज विल गेट अप्रिशिएटेड। दैट इज द ओनली रीजंस वी आर मेकिंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो बताओ इसमें कोई डाउट? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पूरा बता दिया हमने आपको, कोई डाउट तो बताइए। हमने बताया कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज टू बाय और सेल एसेट एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर एंड द फ्यूचर एट अ सर्टेन प्राइस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू hedge against risk or speculate on the price movement of the underlying asset. Future contract are standardized contract traded on a centralized exchange. The future contract can be considered as sort of betting between those two parties because बिल्कुल जुआ है, बिल्कुल gambling है, both the parties are trying to maximize their gains. This is all about the future contract. थर्ड इज ऑप्शंस। व्हाट इज ऑल अबाउट द ऑप्शंस? बहुत सुना होगा, ट्रेड में भी सुना होगा, स्टॉक मार्केट में भी सुना होगा कि ऑप्शंस क्या होता है। अभी बताइए, कोई डाउट है बताइए। बताइए कोई डाउट हो अभी तक की? Anybody is having a doubt to tell me please? चलो अब बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस क्या होता है? ऑप्शन नाम से समझ में आ रहा है कि ऑप्शंस में कि इन ऑप्शन इज सिमिलर टू द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कि ऑब्लिगेशन होती है कि आप कभी भी ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ऑप्शन इज ए सिमिलर टू द सिमिलर टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, similar to future contract in that it is an agreement between the two parties
between the two parties granting one the opportunity to buy or sell a security from the other at a predetermined future date. तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि ऐसे ये वाली लाइन याद रखिए कि द की differences between the future and options is that options में क्या होता है कि options simply gives buyers the option, simply gives buyers to the options to either buy or sell asset at a certain price and date. मतलब क्या आएगा, सिंपल भाषा में समझिए. आप जैसे कि फ्यूचर में हमने क्या करा कि एक डेट फिक्स कर दी, बोल दिया कि इस देश पे इस डेट पे जो भी प्रिवेलिंग प्राइस होगा वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा. बट इन ऑप्शंस इट इज इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज which gives the opportunities to buy or sell a security from the others at a predetermined future date. And the key difference between the future and options is that option simply gives buyers to the options. आप पहले भी खरीद सकते हो, बेच भी सकते हो. यहाँ पर ऑप्शन है, मतलब नेम itself reflecting what is all about the meaning of options. तो आपको आप पहले खरीद भी सकते हो, पहले आप बेच भी सकते हो बिफोर द प्री डिटरमाइंड या प्रीवेलिंग डेट जो भी होगी. आपको लग रहा है कि आपका पैसा बढ़ गया, आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो गई, आप बेच के खत्म करिए, प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए. इन सेम टाइम सेलर को लगा मेरी करेंसी पहले हो गई, सेलर बोलेगा पेमेंट लाइए आप. तो ऑप्शंस भी बहुत रिस्की होता है. ठीक है. तो द की डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर एंड ऑप्शंस इज दैट ऑप्शन सिंपली गोज बायर्स टू डू ऑप्शंस टू इधर बाय और सेल. आप बाय करिए या सेल करिए. अगर हम टाइप्स ऑफ ऑप्शंस की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन. व्हाट इज ऑल अबाउट द कॉल ऑप्शन इन पुट ऑप्शंस? कॉल होता है बायर्स पर्सपेक्टिव से. Call give the buyers but not the obligations. Call give the buyers not the obligation to buy a given quantity of the underlying asset at a given on or before a given future date. ठीक है. तो कॉल होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मतलब आप बढ़ेंगे. पुट होता है कि आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी, आपकी चीज मार्केट गिरेगी, तो आप पुट ले सकते हो. तो पुट हो गया कि आप वो सेल करने की बात कर रहे हैं. आप कॉल मतलब बाय करने की बात कर रहे हैं. तो कॉल गिव द बायर्स, नोट करिए, कॉल गिव द बायर्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशंस टू बाय ए गिवन क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट एट ए गिवन ऑन और बिफोर ए गिवन फ्यूचर डेट. पुट में क्या है, पुट भी सेम है, बस थोड़ा सा अलग है. वहां बाय की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेल की बात कर रहे हैं. पुट गिव द बायर्स to the right but not the obligations to sell. वहां पे लिखे to buy a given quantity, लेकिन बोल रहा है to sell a given quantity of a underlying asset at a given price on or before a given future date. All the options are traded are settled in a cash. ये पूरे कैश बिजनेस में होते हैं, इसमें कोई आपको आगे वो बात नहीं करते हैं. तो कॉल ऑप्शन, कॉल हो गया एज पर द बाय की बात कर रहे हैं, पुट बात कर रहे हैं सेल की. क्लियर? कोई डाउट हो तो बताइए कॉल और पुट में. दो ऑप्शन अभी और बताएंगे, लोग दो ही पढ़ाते हैं, आपको दो और पढ़ा रहे हैं. अमेरिकन ऑप्शंस and European options. What are the difference between American options and
यूरोपियन ऑप्शंस। पहले इतना में बताइए, कोई डाउट हो तो। Anybody is having any doubt in American options and sorry, call option and put option? Please do tell me. अभी आपको बताएंगे अमेरिकन ऑप्शंस क्या होता है, यूरोपियन ऑप्शंस क्या होता है, वो बताएंगे, लेकिन पहले कॉल और पुट में या ऑप्शंस में कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। चलिए आगे बात करते हैं कि अमेरिकन ऑप्शंस एंड फ्यूचर ऑप्शंस। अमेरिकन ऑप्शंस सिंपल है, बहुत डिटेल कुछ नहीं। अमेरिकन ऑप्शंस और ऑप्शंस या अमेरिकन ऑप्शंस और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी एक्सरसाइज, पर ये वाली लाइन याद करना है, दैट कैन बी एक्सरसाइज at any time up to the expiration date या up to the expiry date। तो कि अमेरिकन ऑप्शन वो ऑप्शन होता है कि अमेरिकन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज एट एनी टाइम अप टू द एक्सपायरी डेट। जो भी एक्सपायरी डेट है उससे पहले कभी भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ऑप्शंस और इंडिविजुअल सिक्योरिटीज, ऑप्शंस आर, याद रखिएगा, ऑप्शंस आर इंडिविजुअल सिक्योरिटीज अंडर द एनएसी। एनएसी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शंस आर, नोट करिए, ऑप्शंस आर इंडिविजुअल सिक्योरिटीज under the NSE National Stock Exchange are American type of options। तो मतलब जो भी गिवन डेट है उससे पहले कभी भी यू कैन एक्सरसाइज योर कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड अमेरिकन ऑप्शंस। एंड इन टर्म्स ऑफ यूरोपियन ऑप्शंस और ऑप्शंस दैट कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन द एक्सपायरेशन डेट। मतलब जो भी डेट आपकी एक्सपायरेशन है या वट एवर द प्रिवेलिंग डेट ऑफ एक्सपायरी, तो जो भी आपकी डेट है कि 30 नवंबर या 30 दिसंबर, तो 30 दिसंबर को जो भी रेट होगा उसी रेट पे फिर आपका क्या होगा, ट्रांजैक्शन होगा। यहां पर आप पहले भी ट्रांजैक्शन क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहां पर हम कह रहे हैं ऑप्शंस और इंडेक्स ऑप्शंस, और हमने बताया कि ऑप्शंस और इंडिविजुअल सिक्योरिटीज अंडर द एनएसी आर अमेरिकन टाइप ऑफ ऑप्शंस। और यहां पर जो ऑल इंडेक्स ऑप्शन जो होते हैं, ये आपको कैपिटल मार्केट में बताएंगे इंडेक्स ऑप्शन क्या होते हैं या स्टॉक ऑप्शन क्या होते हैं। ऑल इंडेक्स ऑप्शंस, ऑल इंडेक्स ऑप्शंस, ऑल इंडेक्स ऑप्शंस ट्रेडेड एट एनएससी आर यूरोपियन ऑप्शंस। देखिए एक होता है कि स्टॉक मार्केट में ना केवल शेयर खरीदना शेयर बेचना नहीं होता, शेयर खरीदना शेयर बेचना इज ओनली 5% या इवन 2% ऑफ द स्टॉक मार्केट। बहुत सारा चीज होता है, करेंसीज जो खरीदते हैं, कमोडिटीज की बात करते हैं, ऑप्शंस की बात करते हैं, फ्यूचर खरीदा जाता है। ऐसे एनएससी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक्स खरीदते हैं, तो उसको बोलते हैं इक्विटी, इक्विटी, कमोडिटी एंड करेंसी। इक्विटी में भी ऑप्शंस होता है, ठीक है, इक्विटी में भी फ्यूचर होता है। तो ऑप्शंस में भी कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, कॉल में भी बाय एंड सेल, पुट में भी बाय एंड सेल, फ्यूचर भी खरीदा जाता है। ऐसे ही हमारे कई सारे बैंक निफ्टी अलग है, निफ्टी अलग है, ऑप्शंस अलग है, इंडेक्सेस अलग है, तो कई सारी चीजें हम लोगों के अंदर होती हैं। तो ऑल ऑप्शंस आर इंडिविजुअल सिक्योरिटी ट्रेडेड विद द एनएसई इज कॉल्ड अमेरिकन ऑप्शंस। एंड ऑल इंडेक्स ऑप्शन जैसे निफ्टी के, तो निफ्टी का ऑप्शंस होता है, बैंक निफ्टी का ऑप्शंस, दैट इज कॉल्ड यूरोपियन ऑप्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑप्शंस। लास्ट इज स्वैप्स। ऑप्शंस में बताइए कोई डाउट हो तो। कोई डाउट हो प्लीज बताइए जल्दी से। Anybody is having any doubt, please do tell me. Otherwise, now we have only swapping is left. So probably by then in another 10 minutes, we'll try to complete this particular swapping also.
जल्दी बताइए, कोई डाउट हो तो। ये स्वैप्स होता है कि स्वैपिंग करना। स्वैप्स आर, पहले तो स्वैप समझ लीजिए। स्वैप्स आर अग्रीमेंट, अग्रीमेंट between the two parties, between the two parties to exchange the cash flows in the future, in the future, in the future according to the pre-arranged formula. सिंपल है। swaps are swaps are agreement between the two parties to exchange the cash flow in the future according to the pre-arranged formula, that is called swap. स्वैप होते हैं दो टाइप्स के, हम अभी बताएंगे आपको। एक इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है, करेंसी रेट स्वैप्स होता है। ठीक है, ठीक है। पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप। इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या था? करेंसी स्वैपिंग तो आपने देखा होगा कि इंडिया ने जापान के साथ करेंसी रेट स्वैपिंग किया था 2019 18-19 में। तो करेंसी रेट स्वैपिंग के कई एग्जांपल्स मिलते रहते हैं कि अब अपनी करेंसी की जगह, जैसे कि इंडिया जापान अगर ट्रेड करेगा तो इंडिया को कौन सी करेंसी मिलना चाहिए? जापान से करेंगे तो जापानीज येन मिलना चाहिए। तो instead of taking the Japanese yen, India has taken, Japan has given the US dollar to the Indian market. उसको बोलते हैं करेंसी रेट स्वैपिंग। तो इंटरेस्ट रेट स्वैपिंग क्या होता है? एन इंटरेस्ट रेट स्वैप, एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप्स is a financial derivatives, is a financial derivatives contract, is a financial derivative contract in which two parties, in which two parties agrees to exchange, agrees to exchange their interest rate cash flow, their interest rate cash flows। ठीक है, तो an interest rate swap is a financial derivative contract in which two parties agrees to exchange their interest rate cash flow। अब इंटरेस्ट रेट स्वैप का आगे बात करें तो इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या होता है? जनरली इन्वॉल्व्स एक्सचेंज बिटवीन प्री डिटरमाइंड, हमने बोल दिया कि प्री डिटरमाइंड जो फॉर्मूला होता है, प्री डिटरमाइंड नॉशनल अमाउंट विद द फिक्स एंड फ्लोटिंग रेट। मतलब जिस रेट फिक्स और फ्लोटिंग रेट जो होता है पहले से फिक्स कर दिया आपने, उसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं? कैश फ्लोज को स्वैप करते हैं एक कंट्री की करेंसी से दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ। मान लीजिए कि फिक्स रेट, इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन्स, इंटरेस्ट रेट ऑन द सेविंग्स आपके में, आपके देश में ज्यादा है, तो लोग क्या करते हैं? देव स्टार्टेड व्हाट वी कॉल शिफ्टिंग देयर फंड फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर कंट्री। तो इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट के लिए हम लोग फिक्स और फ्लोटिंग पहले से ही फिक्स कर लेते हैं, प्री डिटरमाइंड फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग फिक्स कर लेते हैं। उसके बेसिस पे हम लोग कैश फ्लोज का स्वैपिंग करते हैं एक देश से दूसरे देश में, उसको इंटरेस्ट रेट स्वैपिंग कहा जाता है। ठीक, और वो तो बहुत सिंपल है, क्या बोलते हैं उसको? करेंसी स्वैपिंग। करेंसी स्वैपिंग में हमने आपको एग्जांपल दे ही दिया था कि जब इंडिया ने जापान से करेंसी स्वैपिंग किया था, जापान ने देना चाहिए था जापान को या जापानीज येन, बट कोई भी देखो, नॉर्मली हमने आपको बताया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कंट्रीज की करेंसीज अप्रिशिएट एंड डेप्रिशिएट होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द रिस्पेक्टिव करेंसी इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। इफ योर कंट्रीज करेंसीज डिमांड इज मोर, दैट मींस योर करेंसीज विल गेट अप्रिशिएटेड इन वाइस वर्सा। तो सभी लोग क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि अपनी करेंसीज में ट्रेड करें, बट ड्यू टू सर्टेन फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया विद द जापान, so what the Japan has done certain $75 billion currency swap with the India. So instead of giving your own currencies, we have to be give them different currencies. जापानीज येन क्या है? इंडिया से भी छोटा है, इंडिया से भी ज्यादा डेप्रिशिएटेड है, तो यूएस डॉलर उन्होंने दिया। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए करेंसी स्वैप्स आर ए फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेक्स अग्रीमेंट, forex agreement between the two parties to exchange cash flow streams
इन वन करेंसी टू द अदर करेंसी। हमने आपको बता ही दिया, आप देखेंगे गूगल करेंगे कि इंडिया एंड जापान डील विद द करेंसी स्वैप अराउंड $75 billion. I don't think remember accurate number, but India has done the currency swapping with the Japan. Currency swappings are a foreign exchange agreement between just two parties to exchange the cash flows streams into the one currency into another. ठीक है, जो याद रखेगा, तो इंटरेस्ट रेट स्वैपिंग होता है वो केवल एक करेंसी में होता है, बट करेंसी करेंसी स्वैपिंग जो होता है वो दो करेंसी के बीच होता है कि आपका यूएस डॉलर और इंडिया और जापान, तो बीच में दो करेंसी है, इसको बोलते हैं हम लोग करेंसी स्वैपिंग। तो स्वैपिंग बोथ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बिटवीन द पार्टीज विद द कैश फ्लोज फ्रॉम द डिफरेंस करेंसी, इसको बोलते हैं करेंसी। तो आपस में करेंसी को स्वैप करते हो जो करेंसी स्वैपिंग बोलते हैं, इसमें दो करेंसियां होती हैं। इंटरेस्ट रेट स्वैपिंग में केवल इंटरेस्ट रेट को, कैश फ्लो को, उसका बेनिफिट लेने के लिए फिक्स या फ्लोटिंग रेट जो भी है वो प्री डिटरमाइंड पहले से फिक्स होता है। उसके बेसिस जब हम लोग करेंसी को उसके बेसिस पे जब हम लोग एक्सचेंज करते हैं, स्वैप करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैपिंग। So this is all about today's lecture. If anybody is having a doubt, please to tell me. बताइए कोई डाउट हो। Anybody is having any doubt, please do tell me. किसी को कोई डाउट बताइए। जगह मैम आप, शिवा मैम आप, सौम्या, अनामिका, रोहित, शिखा, अंजलि, एनीवन, सुनीता, एनीवन इज हैविंग any doubt, do tell me.